Good morning, class. Today we are going to discuss about software programming. You know already, we know about if you want to develop a software, you must understand the concept of programming. There are varieties, there are different types of programming language here, because we are going to discuss about the Java programming. Okay. First of all, we know who have invented Java. Okay. Right now, अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, we will talk about in any programming language, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई ना कोई पर्सन ही इनोवेशन करते हैं, यानी कि इनोवेट किया जाता है। तो जावा को जिन्होंने इनोवेट किया था, दैट्स नेम इज जेम्स गॉसलिंग and Patrick Norton. Write down. Java programming was developed by James Gosling. Java programming was developed by James Gosling. Class, write down. James Gosling and Patrick Norton. Under the supervision of Sun Microsystem. यानी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो डेवलप किए थे, उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन, और जिसके सुपरविजन में यानी कि पर्यवेक्षण में जिसके अंतर्गत उन्होंने इन चीजों का अध्ययन किया था, उस कंपनी का नाम क्या था? विकास सन माइक्रो सिस्टम। इसे 1995 में लाया गया था एंड द फर्स्ट नेम 1995 में जो जावा आया था, उसका फर्स्ट नेम क्या था? ओक। दैट इज ओक। द फर्स्ट नेम ओक। After some times, the name had renamed like Java. In 1998 में इस ओक को रीनेम कर दिया गया जावा के साथ। अब आप कहेंगे जावा के साथ एक सिंबल, एक इमेज उसके साथ हमेशा रहता है, जो कॉफी का सिंबल है ना? तो क्या था? जेम्स गॉसलिंग and Patrick Norton, ये दोनों क्या थे? प्रोग्रामिंग करने के लिए बैठे। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, we want to develop such a programming language which is relevant, which is more powerful, which is more robust, which is relevant. Okay, so उन्होंने क्या किया? We should develop such a programming language. तो उन्होंने क्या किया? बैठे हुए थे सिस्टम पे, कॉफी खूब पिए जा रहे थे। नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने कॉफी बहुत पिया, तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि थॉट्स के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के पहले उन्होंने नो डाउट 100 कॉपीज भी क्रॉस कर चुके होंगे, जेम्स गॉसलिंग और पैट्रिक नॉर्टन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इस थॉट्स को, इस आइडियाज को अगर इनोवेट किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस कंसेप्ट को एक सिंबलिक, एक डायग्रामेटिकली हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कॉफी के सिंबल से। इसलिए जावा आप जब भी देखेंगे तो चाय के कप की तरह एक उससे फॉग टाइप का निकलता रहता है, तो फॉग दैट मींस लाइक अ चाय के कॉफी की तरह। सो दैट मींस जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन दैट विल वर्क। अब देखिए, ये जब आया था उस समय
जावा के साथ पहले फीचर्स भी हैं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द फीचर्स ऑफ जावा. सो प्लीज क्लास राइट डाउन features of Java. Features of Java. विशेषता. आप जानते हैं when you will go to market and purchase anything, so first of all you must keep in your mind or initialize in your mind features. जब तक आप फीचर्स नहीं देखते हैं never you can purchase anything. And features is very important for everybody. So features क्या थे जावा के? First is that simple. Write down simple. Second is that secure. This is secure. Third is that object oriented. Next is that architecture neutral. Next is that portable. Next is that dynamic. Interpreted. Next is that multi-threading. And next is that simple, object oriented, and next is that reusability. Here we will see reusability, interpreted. So here class, these are the features. Look at the board. क्लास ध्यान से देखिए. सिंपल करने का मीनिंग ये नहीं है कि प्रोग्राम लिखना आसान है. That's not the meaning of this term. The meaning of this term is that you are going to write a program, you are going to define the program on any platform. That means Java किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखता है. सबके घर में जाके काम भी कर लेगा और करके निकल भी जाता है. Just like Java. यानी किसी से अपने. That means Java के साथ एक स्लोगन है. That means that is the tagline. Tagline you will see. Write once, run everywhere. Write once, run everywhere. That means Java, if you write the Java code on any platform like Windows, Unix operating system, Mac operating system, Linux operating system, Mac operating system, etc. But if you want to run this program on Windows, so easily you can run. That's why क्यों? क्योंकि जावा के साथ जैसे आप लोग जानते हैं LIC का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कोटेशन है, टैगलाइन है, हर मोड़ पे आपके साथ. यस या नो? LIC का है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. एक्सिस बैंक का है बढ़ती का नाम जिंदगी. वैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है राइट वंस रन एवरीवेयर. फिट्स का टैगलाइन क्या है? बिलीव इन योरसेल्फ. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक टैगलाइन होता है, चाहे स्टेट बैंक हो चाहे फिट्स इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, एक टैगलाइन पे वर्क करता है. सो हियर जावा में क्या है? राइट वंस रन एवरीवेयर. दैट मींस इफ यू राइट द प्रोग्राम ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इफ यू वांट टू कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, surely you can compile and run. That's why you do that. So here simple की meaning clear हो गई. Second is that point secure. Secure as we right now it will talk about perspective every programming language. किसी programming language के regarding अगर हम concerns बात करें तो Java आज भी सबसे secure और सबसे this is the most powerful language in accordance with every programming. That means hacker cannot hack the software
website which have developed in Java that will not be interrupted by any hacker. That's the point, due to secure abilities, secure features which is resides in Java. यानी जो features Java में reside करता है, यही reason है कि आज भी सबसे पावरफुल लैंग्वेज, सबसे सिक्योर अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है तो कौन कहा जाता है क्लास? विकास किसको बोलते हैं? लेट वी विल स्पीक जावा. जावा इज मोर पावरफुल, जावा इज मोर सिक्योर. दैट्स व्हाई इसलिए गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हो, या यूनाइटेड, इफ विल टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट मींस ऑलवेज जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज है, ऑलवेज दैट विल बी यूज ऑफ द सिक्योर फीचर्स एंड दैट विल बी रिलाइज. सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन जावा. सो जावा में यही एक सिक्योरिटी के कारण है, इसी एक सिक्योरिटी के कारण बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए और गए, लेकिन जावा को आज तक कोई भी मान. सबसे ज्यादा अगर आदमी किस चीज से डरता है? सुरक्षा से. सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज किसकी जरूरत है? व्हाट वी नीड? सिक्योरिटी. हर पर्सपेक्टिव से, गर्ल्स हो, बॉयज हो, कहीं भी जा रहे हो, गवर्नमेंट्स हो, देखते हैं जेट प्लस की सुरक्षा प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती है या बहुत सारे पावरफुल पर्संस के पास रहती है. दैट्स व्हाई क्यों दैट इज द सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. गर्ल्स जा रही हैं, उनको भी सुरक्षा भय, देयर आर लॉट ऑफ फ्यूल्स, देयर आर लॉट ऑफ पर्संस, है ना. तो कहीं ना कहीं हैकर जो है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरप्ट कर सकता है, बट ही कैन नॉट हैक, he cannot track the code on Java. Java के कोड को कभी ना ट्रैक कर सकता है ना हैक कर सकता है, क्योंकि Java की कोडिंग जो है बहुत ही पावरफुल मानी जाती है. यही रीजन है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट के वेबसाइट्स किस में बनते हैं? जावा में बनते हैं. मैक्सिमम अगर अमेरिका की बात करें, वी टॉक अबाउट अमेरिका, तो उसके भी मैक्सिमम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट किस में बनते हैं? जावा बनते हैं. क्यों? क्योंकि सिक्योर के मामले में आज भी जावा क्या है? नंबर 1 पे है. जावा का पोजीशन कोई सिक्योरिटी के मामले में आज तक ट्रैक नहीं कर पाया. नेक्स्ट वी विल सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करने से क्लास क्या है आप समझेंगे. एक फीचर्स की बात करेंगे. इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में all the worlds are object oriented. हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज का एक उद्देश्य है. ये मार्कर है तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है. इस गॉड, चाहे वो बाय द क्रिएटेड बाय गॉड और बाय द क्रिएटेड बाय अ पर्सन, एवरी ऑब्जेक्ट्स आर ओरिएंटेड. हर चीज का एक केंद्रित है, बिना ऑब्जेक्ट का कुछ भी नहीं है. आप आसपास नजर घुमा के भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हर चीज का कुछ ना कुछ टास्क फिक्स है, बिना ऑब्जेक्ट का कुछ भी नहीं है. सो इफ वी विल टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट विल बी वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लाइक encapsulation. Second is that abstraction. Please write down the features of object oriented. Encapsulation, abstraction. Third is that abstraction is also known as data abstractions. Abstractions को हम लोग data abstractions भी बोलते हैं. Data abstractions. Fourth is that polymorphism. Fourth is that inheritance. Okay, so class क्या है? ये फीचर्स हैं, हर के फीचर्स अलग हैं. So that is the features of the object oriented programming language. First is that encapsulation. Second is that abstractions. Abstraction is also known as data abstraction. Third is that polymorphism, and fourth is that inheritance. Okay, so please write down the definition of encapsulation. Encapsulation is a mechanism which binds together a member data. Encapsulation is a mechanism which binds together member data. Encapsulation is a mechanism which binds together member data and member functions. In such a way that member data is accessible using member functions only.
एग्जाम्पल बताएंगी नेहा, कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर इनकैप्सुलेशन? When you will place the switch, the fan will work. याद रखिए, आज आप मेडिसिन देखे, टैबलेट्स देखे, कार देखे, कुछ भी चीज देखे, आप अपने आप को देखिए, गॉड आपको क्या किए हुए है? इनकैप्सुलेट किए हुए है। मान लीजिए अगर गॉड हम लोगों को इनकैप्सुलेशन का पिक्चर नहीं देता तो हम लोग जो आप देखते हैं कि घोस्ट बन के जो घूमते हैं, पूरे नरकंकाल होके घूम के देखते हैं, है ना? सो कितने बड़े टेम्पर्स होते हैं। तो जस्ट लाइक अगर कार की भी बात करें, एक कार की आप देखिएगा, इंजन अगर ओपन रहता, इंजन पर बॉडी कवर रहता है कि नहीं रहता है? यस या नो? इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, ऑल थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स मस्ट रिसाइड्स विद इन द इनकैप्सुलेशन। इसके अंदर रहेगा ही। इंजन को देखिएगा, इस तरह से कवर किया हुआ रहता है। यस ना? हम लोग को अगर गॉड जो है स्किन नहीं देता, स्किन यानी कि जो हम लोग का स्किन है, बड़े स्किन, तो कैसा हम लोग दिखते हैं? अजीब सा। यस या नो? तो जस्ट लाइक इनकैप्सुलेशन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ह्यूमन। या आप इंजन की बात करेंगे, कार देखिए, मान लीजिए कवर किया हुआ नहीं रहता, बिना कवर किया हुआ इंजन ऐसे ही चलता, तो कोई वहां पे किसी चीज को थ्रो करता और फेंक के देखता कि क्या होता है उस इंजन में, तो क्या होता है कि नहीं? तो चाहे इफ वी विल टॉक अबाउट द कार by extra, everything are encapsulated. That is the features of encapsulations. Okay, so next, abstraction. Write down the outcome of encapsulation. The outcome of encapsulation is called abstraction. The outcome of encapsulation is called abstraction or data abstraction. Okay class, the outcome of encapsulation is called abstraction or data abstraction. So can you give an example? Neha, already I have discussed previous lectures, already I have discussed about the abstractions or data abstractions. जैसे आप टैबलेट्स देखते हैं, मेडिसिन, है ना? मेडिसिन के टैबलेट्स आप किसी भी चीज के लिए यूज करें जो डॉक्टर आपको रेफर करता है, जब आप वहां पे आप देखोगे, देन यू विल फाइंड कि वो मेडिसिन सिर्फ एक केमिकल से नहीं बनते हैं, दैट विल बी कंपोज्ड बाय द नंबर ऑफ केमिकल्स, यानी कि फास्फोरस, जिंक, बहुत सारे चीज होते हैं ना। क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ जिंक ही मेडिसिन में रहते हैं, टैबलेट्स में? नो, नॉट एट ऑल। दैट्स व्हाई, बिकॉज़ एक मेडिसिन बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे रिएक्शंस के कारण वो ही मेडिसिन बनते हैं। लेकिन आपको क्या है, अब आप मेडिसिन, एक बुखार के लिए आपको फीवर है और आप जाएंगे दवाई वाले से, मेडिसिन वाले से पूछने कि नहीं, पहले आप मुझे बताओ इसमें फास्फोरस कितना है, जिंक कितना है, कितने, तो कहेगा कि नहीं मुझे मेडिसिन टैबलेट्स नहीं बेचने हैं। एट लास्ट आपको वही कहेगा, यस, वो मेडिसिन में उसे भी नहीं पता है यार लॉट कितने ग्राम्स, कितने फास्फोरस, कितने जिंक, कितने टैबलेट्स में, क्यों? उसका काम ही नहीं है ना। उसका काम क्या है? सिर्फ सेल करना। इज सेलर, वो सेल करता है और यू आर अ कंज्यूमर। तो आपका काम क्या है? यू कैन कंज्यूम, आप कंज्यूम करते हैं। आपको मेडिसिन, डॉक्टर पेपर क्या मेडिसिन का है, अब वो मेडिसिन टैबलेट कैसे बना, फास्फोरस कितने गए, जिंक कितने गए, नो आपका पर्सपेक्टिव तो क्या है? दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, the word polymorphism, because write down, the word polymorphism is derived from the Greek word, derived from the three Latin Greek words, derived from the three Latin Greek words, first poly plus more plus fism. First poly, second more plus fism. Poly plus more plus fism. That means, which means that, write down class, which means that one interface
one interface multiple works, one interface multiple work. For example, a smartphone, आज लोग quite users एक जो रिक्शा पुलर है, एक we will talk about the rickshaw puller, shoemakers, goldsmith. There are a lot of persons. एक छोटा से छोटा जो मतलब लो पर्सन्स है, वो भी किस चीज को यूज कर रहा है? स्मार्टफोन को यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? उसके माइंड में एक ही कंसेप्ट है, जब भोजपुरी गाना बजाना हो तो गाना भी सुन लेंगे, जब कॉल करना होगा तो कॉल। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक कॉमन सबके माइंड में प्रोस्पेक्टिव है ना कि एक ही वर्ड से मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर लेंगे। That is the best example of this polymorphism. अगर polymorphism का concept नहीं होता, तो everything are not developed. सिर्फ हम स्मार्टफोन की बात नहीं करें, आप बहुत सारे चीजों को आप ऑब्जर्व कीजिए। आप ऐसी फीचर्स को पसंद करते हैं जिसमें सारी बातें रहें। यस या नो? स्मार्टफोन तो एक कॉमन एग्जांपल है, दिस इज यूज्ड टू एग्जांपल, हम लोग को डेली लाइफ में यूज्ड टू है, हर कोई स्मार्टफोन से। और सबसे बड़ी बात, स्मार्टफोन सबको अपने कब्जे में ले चुका है ऑलरेडी। एवरी पर्सन्स आर अफेक्टेड, एवरी पर्सन्स आर इन्फ्लुएंस्ड थ्रू द स्मार्टफोन। एंड स्मार्टफोन में एक और चीज है, एप्स। दिस इज द वेरी फीचर्स, एप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्स को क्या बोलते हैं? दैट्स द फुल फॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्स और स्मार्टफोन दोनों आपस में दैट विल बी कंबाइंड टुगेदर, और आप लोगों पे अपना कब्जा यानी कि डोमिनेंट हो चुका है। स्मार्टफोन पूरी तरीके से सब पे हावी हो चुका है। कोई पर्सन का वॉलेट छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट इफ यू लेफ्ट दिस स्मार्टफोन तो आप दौड़ के जाते हैं कि स्मार्टफोन लेके आना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, दैट इज द मेन फीचर्स ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आज पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, इफ द फीचर्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म नॉट अवेलेबल, सो ना कभी स्मार्टफोन डेवलप हो पाता, ना इस तरह की फीचर्स आती, और ना ही इस तरह का। आप सिर्फ वॉलेट की बात नहीं करें, वी विल टॉक अबाउट द मनी। आज एवरीथिंग सब स्मार्टफोन में आके सिमट गया है, हर चीज ए टू जेड एक ही स्टेप का है, ड्यू टू polymorphism. This is the best example of the polymorphism. So, यहाँ polymorphism is also classified. Write down. Polymorphism is also classified into two types. First is that compile time polymorphism. Class, write down. Compile time polymorphism. Compile time polymorphism. Compile time polymorphism. First is that compile time polymorphism. Compile time polymorphism, and second is that runtime polymorphism. First is that compile time polymorphism, and second is that runtime polymorphism. और एक चीज और, polymorphism का एक एग्जांपल और भी है। It will talk about मैथ्स के इन अकॉर्डेंस विद मैथ्स के अगर पर्सपेक्टिव अगर हम लोग बात करें तो हमें एक जैसे अगर मैंने एक मेथड बनाया, इफ आई हैव क्रिएटेड द मेथड नेम ड्रॉ। कौन सा मेथड बनाया? ड्रॉ। तो ड्रॉ से बाय दिस मेथड वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, वी कैन कंस्ट्रक्ट स्क्वायर, वी कैन कंस्ट्रक्ट सर्कल। यस या नो? दैट मींस मेथड नेम इज सेम। यस नेहा, लुक एट, मैंने एग्जांपल दिया है स्मार्टफोन का और प्रैक्टिकली देखने को भी मिल जाता है। सो लुक एट, ड्रॉ है तो ड्रॉ मेथड से बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉ, मैंने अभी कहा ना कि आदमी हर चीज के बिना रह सकता है लेकिन स्मार्टफोन के बिना, तो वो आप यूज्ड टू में भी इंप्लीमेंट है। सो हियर वी विल सी, यहाँ ड्रॉ मेथड मैंने बनाया। हियर आई हैव क्रिएटेड द ड्रॉ मेथड, बट बाय द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉ मेथड वी कैन कंस्ट्रक्ट द मल्टीपल। फर्स्ट इज दैट ट्रायंगल, सेकंड इज दैट स्क्वायर, थर्ड इज दैट सर्कल। दैट मींस क्या हमें अलग अलग मेथड की जरूरत पड़ी? इफ वी नीड टू डिफरेंट मेथड, जरूरत पड़ा नहीं। चेहरा एक, इंटरफेस मींस चेहरा एक, काम अनेक। आप ड्रॉ क्या हुए? इंटरफेस एक हुए, दिस इज वन इंटरफेस। इसके मेथड्स कितने वर्क हो रहे हैं? ट्रायंगल हो रहा है। बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, वी कैन कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर, वी कैन कंस्ट्रक्ट द सर्कल। यस या नो? सो क्लास,
आप पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है इन जावा, here I have written Java programming like a compile time polymorphism, runtime polymorphism. Later we will discuss how we can define compile time polymorphism, how we can use runtime polymorphism. That will be depend. Okay. So next point is that inheritance. Write down inheritance. Inheritance. The word inheritance. The word inheritance is derived from the word inheritance is derived from the inherit words. Inherit, I-N-H-E-R-I-T. Inherit words, which means that one class inherits all the properties of the base class into superclass. अब देखिए इनहेरिटेंस का एग्जांपल देने से पहले here I will talk about the smartphone. आज लोगों का सबसे फास्ट फ्रेंड कौन हो गया है? Which is the best friend? स्मार्टफोन। उसको झगड़ा किसी से हो जाए तो भी स्मार्टफोन देखने लगते हैं, चेक करने लगते हैं, या किसी से दोस्ती हो जाए, नहीं बात करना है तो भी स्मार्टफोन लेके यूज करने लगेंगे। तो क्या है, स्मार्टफोन सब पे अपना पूरी तरह से डोमिनेंट हो चुका है। जैसे वाटर इज लाइफ, अगर मैं कहूँ हियर इफ आई विल स्पीक जस्ट लाइक वाटर इज लाइफ, तो क्या स्मार्टफोन इज लाइफ हो चुका है कि नहीं? क्या गलत है क्लास? तो जस्ट लाइक इनहेरिटेंस का पिक्चर्स भी अब आ जाइए, समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट में जो है एक क्लास की प्रॉपर्टीज, लोग तो पहले भी फोन यूज किया करते थे कि नहीं, लेकिन आज जो हम फोन यूज कर रहे हैं क्या है, सारे फीचर्स इनहेरिट हो गए कि नहीं? कॉलिंग का फीचर्स आज से 10 इयर्स पहले भी था, 20 इयर्स पहले भी थे, 30 इयर्स पहले भी थे, 30 साल पहले भी थे और अभी भी है। क्या कॉलिंग का फीचर्स कभी हट सकता है? नो। तो क्या है, इनहेरिटेंस का कांसेप्ट भी वही है। तो फोन में भी कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का कांसेप्ट काम करता है। हर प्रॉपर्टीज दैट विल बी इनहेरिट, यानी कि वो बेसिक चीज को कभी भी एलिमिनेट नहीं। दैट मींस here we cannot eliminate your basic operations which have been defined within the class. If you like a calling एक ऐसा वर्ड है, ऐसा फीचर्स है, ऐसा क्लास है जिसको चाहे वो आईफोन हो 2 लाख का या चाहे वो मोटोरोला का 3 लाख का फोन हो, तो भी कॉलिंग का कांसेप्ट कभी भी नहीं हटता है। वो फीचर चाहे वो 2000 का फोन हो चाहे वो 2 लाख का फोन हो, कोई बस नहीं है, बट द फीचर्स are similar, that is the calling due to inheritance. कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो लेकिन इनहेरिटेंस कितने तरह का होता है? How many types of inheritance? नेहा 2 types. Which one? Yes, आप बताइए। देखिए जावा में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, जावा में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वहां पे मल्टी लेवल का इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। कैसे? हियर वी कैन राइट द प्रोग्राम एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जैसे अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, हियर आई एम गोइंग टू राइट द प्रोग्राम, तो आप समझ पाएंगे कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे। ओके, लुक एट द बोर्ड क्लास, ध्यान दीजिएगा। क्लास हियर क्लास, यहाँ पे मैंने लिखा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जावा में कुछ भी करने से जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे, आई विल डिस्कस कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सेव द फाइल इन java extension as well as class name and file name must be same. If you do not write the class name and file name, compiler will compile, but during the runtime interpreter will give up error. So
always you must write the file name and class name same, like pits.java। हमने क्या किया, एक फाइल बनाया, ठीक है विकास, कोई दिक्कत? पहले क्या करेंगे, कुछ भी करने से पहले फाइल का एक्सटेंशन बनाते हैं, pits.java, और यहाँ पे मैंने लिखा here I have written, here we are going to write the code, जावा में कोडिंग करने जा रहे हैं। कोडिंग कैसे करेंगे, फिर क्लास pits। अगर if I will change, अगर यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्लास नेम और फाइल नेम, कंपाइल कर जाएगा बट रन टाइम ये श्योरली एरर देगा। इसको प्रैक्टिकली जब हम लैब में करेंगे तो ज्यादा क्लियरफाई होगा। क्लास pits, here we have defined the member data like this, public static void main, public static void main string args। ओके, दिस इज द सिंटैक्स। यह सिंटैक्स है जो वी मस्ट डिफाइन ऑफ दिस, मैं बताऊंगा कैसे सिस्टमैटिकली। अभी बस एग्जांपल के लिए समझिए। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द इनहेरिटेंस कांसेप्ट इन द जावा। सो ये क्लास pits पब्लिक स्टैटिक void main, यहाँ पे पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक इज दैट एक्सेस क्वालिफायर, void is that return data type, main is that primary function, string args। नेहा बताइए, स्ट्रिंग आर्ग्स डेटा टाइप, स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप, और आर्ग्स क्या है, दिस इज द एरे। ओके, सो हियर एंड लाइक दिस मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शंस, इस सबको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है ना। अब देखिए क्लास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्लास pits लिए अब हम चाहते हैं हियर right now if we want to retrieve the properties of class pits into another class, तो कैसे यूज करेंगे, by the help of extend keywords। एक पॉइंट लिखेंगे, देखिए वहां पे पॉइंट, if you want to inherit the properties of the base class to a super class, always you must the extend keyword। if you want to inherit the properties of the base class, if you want to inherit the properties of the base class, if you want to inherit the properties of the base class into a super class, always you must use of extend keywords। कौन से कीवर्ड को यूज करेंगे, which keywords, extend keywords। So please write down extend, extend keyword। Here we will write class, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास btech extend pits, यानी कि here we can observe क्लास btech किसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है, pits की प्रॉपर्टीज को। यहाँ पे अगेन repeatedly we will not define the member data and member functions of the class pits, जो ऑलरेडी पहले हम डिफाइन कर चुके हैं उसको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। Only we can retrieve the properties by the help of extend keywords। कौन से कीवर्ड से इनहेरिट हम लोग कर रहे हैं, एक्सटेंड कीवर्ड से। किसके अंदर क्लास की प्रॉपर्टीज है, हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास आर डिफाइंड टू द क्लास pits, और हियर आई हैव क्रिएटेड द क्लास btech extends the pits, and that we will define the member functions and member data which is decides in this method। That means this is the process of this reusability। क्या प्रोसेस इसको कहेंगे विकास, reusability। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, ओके, सपोज आप के पेरेंट्स हैं, आप बच्चे हैं, तो आप देखते होंगे बोलचाल की भाषा में यूज टू में जो हम लोग यूज करते हैं, आपके रिलेटिव बोल देते हैं इसका चेहरा जो है पेरेंट्स के मम्मी की तरह मिल रहा है या फादर की तरह मिल रहा है या नानी की तरह, दैट इज क्या है, इनहेरिटेंस के कारण है। या
इसका बात करने का तरीका, यानी एक कंसर्न है, एक कंसेप्ट है कि आपका इनहेरिटेंस बताता है कि आपका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपके अंदर कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट, चाहे बात करने का तरीका हो, वे ऑफ टॉकिंग हो, फर्स्ट पॉइंट, वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो, सेकेंड पॉइंट, वे ऑफ इनहेरिटेंस इम्पैक्ट करेगा, दैट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर एंटायर पर्सनालिटी। सो इनहेरिटेंस जस्ट लाइक, अब यहाँ पे पेरेंट्स है, अब देखिए एक पेरेंट्स के एक बच्चे हुए, तो एक बच्चे जो चाइल्ड है, पी को हम कर लीजिए पेरेंट क्लास और सी को चाइल्ड क्लास। सो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लास विल inherit all the properties of the parent class as well as all the properties of the GP, grandparents का भी इनहेरिट को प्रॉपर्टीज करेगा। yes or no? अगर कोई ग्रैंडसन है तो ग्रैंडसन पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा और ग्रैंडपेरेंट्स को भी। तो सिमिलर फीचर्स हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही कांसेप्ट काम करता है, दैट विल बी वर्क बाय द एक्सटेंड कीवर्ड्स। क्लास बीटेक हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट आई हैव क्रिएटेड द क्लास पेड्स and here we will write the class pairs and public static void main string args, member data and member functions, and class btake extends the pairs, यानी कि हमें बार-बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। only we are going to call, we are going to retrieve all the member data and member functions of the class pairs by the help of extend keywords easily। yes या no विकास? Good. So I think oops के भी थोड़े concepts clear हो गए होंगे। Right now we are going to discuss about the reusability, बताने की जरूरत नहीं है, already बता दिए कैसे reusability वर्क करते हैं। And next point is that architecture neutral, and here I will ask from Neha what is the meaning of architecture neutral, that is JVM। Yes, मैंने पूछा मैंगो, उन्हें बताया आम। सो नहीं, दैट मीन्स क्या होते हैं वो तो मुझे भी पता है, इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। व्हाट इज जेबीएम, वो तो मुझे भी पता है कि मैंगो का मीनिंग आम होता है। जेबीएम जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई कीजिए व्हाट इज जेबीएम। मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चर न्यूट्रल के साथ क्या लिखा है विकास? जेबीएम लिखे। जेबीएम का मीनिंग क्या होता है? देखिए जेबीएम जावा वर्चुअल मशीन, एक्सप्लेन करेंगी नेहा, जवाब देना बिना आंसर्स के क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डू नॉट डिफाइन सो हाउ यू कैन। जावा वर्चुअल मशीन, लुक एट, मैंने एक ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द हीप एरिया, स्टैक एरियाज, मेमोरीज, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑफ दिस कंसर्न, कैसे इसके जेबीएम के आर्किटेक्चर्स होते हैं। दैट मींस हियर वी कैन से जेबीएम का एक आर्किटेक्चर्स होता है जिसमें एक स्टैक एरिया होते हैं, एक मेमोरीज एरिया होते हैं, स्टैक एंड अनदर पार्ट इज दैट रजिस्टर, अनदर पार्ट इज दैट पीसी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, अनदर पार्ट इज दैट heap area, another part is that so there are lot of segments, there are lot of components which resides into the JVM, Java Virtual Machines। okay, so class JVM का मीनिंग ही क्या है? आर्किटेक्चर न्यूट्रल, दैट मींस जावा किसी से प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा नहीं है कि वहां पे चला गया विंडोज के साथ तो विंडोज के साथ दोस्ती कर लेगा, नहीं। जावा को अपने काम से काम मतलब रखता है, उसका रिस्पांसिबिलिटी है प्रोग्रामिंग लिखना, कंपाइल कराना, रन कराना, तो बस यही। वो फिर वहां पे जाकर वर्कआउट नहीं करेगा, उसको विंडोज से न दोस्ती है, नहीं उसको फ्रेंडशिप किससे है? मैकेनिकल ऑपरेटिंग सिस्टम से या उसको लिनक्स से। बस काम करने से अपना मतलब रखता है, काम किया वहां से निकला चल दिया। दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जेवीएम। ओके, सो ड्यू टू आर्किटेक्चर न्यूट्रल, यस या नो, जावा यही सब चीजों के कारण जावा को काफी आर्किटेक्चर न्यूट्रल रोस्ट का कहा जाता है। इसका आर्किटेक्चर्स आई हैव रिटन each and every points in the notes, and after over the lectures I will distribute ebook platform, and then you can find what is the architectures diagram for this architecture neutrals। okay, portable, portable का मीनिंग से क्या हुआ? what is the meaning of portable बताइए? this is very common word, what is portable? देखिए पोर्टेबल का मीनिंग आप देखेंगे राइट नाउ, देयर आर लॉट ऑफ फोन्स, देयर आर लॉट ऑफ स्मार्टफोन्स के पास आज जो चार्जर आते हैं, यू नो
यूएसबी चार्जर होते हैं, यू सी वो क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं कि नहीं। ऑलमोस्ट देखेंगे यूएसबी किसी ना आपका चार्जर है नहीं है, पॉइंट्स क्या है उससे बस नहीं है। आप देखते होंगे पहले क्या होता था, आफ्टर लास्ट 2 इयर्स पहले, सॉरी 2 इयर्स में 5 इयर्स 10 इयर्स पहले चार्जर और यूएसबी फिक्स होते थे, यस या नो। बट राइट नाउ अब आप देखेंगे यूएसबी और चार्जर कभी फिक्स नहीं होता है। दैट्स व्हाई पोर्टेबिलिटी, जावा भी वही है। वो क्या करता है कि हाँ सब कोड है, बाइट कोड कर लिए, बाइनरी कोड लिए, ऐसा नहीं कि जावा को कोड को डिफाइन करने के लिए आप वहां पर पहले सॉरी वहां पे जाके आपको पूरे स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट वंस रन एवरीवेयर, if you already have compiled this code easily you can run this program, java program, and you can find out. So इसे जरूरत नहीं है। So this is the important features. Portable example already मैंने समझा दिया। Right now next point is that dynamic, as the name represent, जैसा नाम, अगर नाम है तो उसके काम में ही दम होगा। डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, मल्टी पर्सनल, मतलब उसको जावा के लिए जब कहिए तब वो तैयार है ना? यानी उसके लिए कोई स्पेसिफिक उसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। रन टाइम हो, कंपाइल टाइम, जावा हर चीज के लिए हमेशा क्या रहता है, रेडी रहता है। आप कहते हैं उसके अंदर डायनामिक पर्सनालिटी है। वो पर्सन कभी किसी चीज को, कुछ पर्सन के पास आप देखेंगे रैंडमली अगर उसे सेमिनार हो रहे हैं, कोई पर्सन उसको बोल दिया कि स्पीच दो, कुछ लोगों के पास अद्भुत कला होती है, दैट मींस स्पेशल क्वालिटीज, दैट इज द डायनामिक क्वालिटी। उसको प्रिपरेशंस करने की जरूरत नहीं है, वो हजार लोगों के बीच में बोलने की क्षमता है, दैट इज द फीचर्स ऑफ अ डायनामिक। इसको क्या बोलते हैं, उसकी लेसन को प्रिपेयर नहीं किया बट उसके अंदर एक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, डायनामिक है, वो हजार लोगों के बीच में या लाखों लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकता है। जावा के फीचर्स में सेम कांसेप्ट है। जावा कभी भी किसी पे निर्भर नहीं रहता है। जावा वो किसी दैट में ही इज नॉट रिलेटेड, इज नॉट इंटरेस्टेड, दैट मींस कि वो आप एक बार आप राइट कर लिए कोड को, आप यू कैन इजीली यू कैन कंपाइल दिस प्रोग्राम, रन दिस प्रोग्राम, कैरी करने में ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कॉन्फ़िगर दिस सेट देन एक्शन, नो नॉट एट ऑल, ओनली you can write and then you can compile. Next is that interpreter. Here there are most important features. Java coding को there are two types of compiler. Interpreter भी क्या है, compiler ही है. But there is a basic difference. There is a big difference between a compiler and interpreter. Compiler and interpreter. Compiler will compile entire the program at a time. Compiler क्या करता है, Compiler will compile entire program at a time. That is called compiler. Write down compiler will compile entire program at a time, that is called compiler. Compiler हो तो या इंटरप्रीटर हो तो ये सभी किसके पार्ट हैं क्लास, ये सभी these are the part of the translator. ये सभी क्या है, this is the translator, that means by that ये सब translator के पार्ट है। there are lot of types of translator. First is that compiler, before compiler first is that assembler, second compiler, third interpreter, etc. Okay, so later we will discuss. So first compiler will compile entire the program at a time, that is called compiler. While जबकि write down, while interpreter interprets the code, while interpreter interpret the code line by line, while interpreter interpret the code line by line, that is called interpreter. यही कारण है, due to this reason Java is very popular. Java is more demanding. Java is कि उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा और जाएगा, लेकिन जावा के यही सब फीचर्स के कारण बहुत पावरफुल माने जाते हैं। जावा में एक ऐसा नहीं
बहुत जैसे इफ वी विल टॉक अबाउट द सी सी प्लस प्लस, तो क्या है कंपाइलर का कॉन्सेप्ट है। एक बार में कंपाइल कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट जावा का था नहीं, आई विल नॉट स्किप इन एनी सर्कमस्टांसेस, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक कि लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। जावा एक एक लेटर को चेक करता है, एक एक लेटर को कंपाइल करके चेक करता है कहां पे क्या फॉल्ट है। ये जावा का सबसे अद्भुत वो हो सकते हैं यूनिक फीचर्स है जावा में, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा जावा में यही सब कंपाइलर भी फॉलो कर रहा है, इंटरप्रेटर्स भी कर रहे हैं, एंड दैट विल बी चेक एवरी लेटर्स, एवरी टेक्स्ट, एवरी वर्ड by which is result in keywords, not keywords whatsoever, सारे चीजों को चेक करता है। सो आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर के भी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। एंड लास्ट इज दैट मल्टी थ्रेडिंग, लास्ट पॉइंट मल्टी थ्रेडिंग, राइट डाउन द वर्ड sorry, the word multi-threading is derived from the multi-thread, which means that Java can handle multiple threads. Java can handle multiple threads. That is runtime threading as well as compile time threading. T-H-R-E-A-D-I-N, threading at a time. यानी एक ही समय में जावा के पास बोल सकते हैं ना कि अल्टीमेट फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है जावा के पास है मल्टी थ्रेडिंग के मामले में। यही ऐसे ही कोई पॉपुलर नहीं होता है, कुछ बात होती है तभी किसी चीज के फीचर्स की मोर डिमांडिंग होती है। दैट इज द फीचर मल्टी थ्रेडिंग कांसेप्ट के कारण जावा बहुत है। मल्टीपल थ्रेड्स को, दैट मींस जावा कैन हैंडल मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम, दैट इज रन टाइम, कंपाइल टाइम। Okay class, so right now I am going to over the lecture. Thank you so much.